بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظریہ پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام کل سے آج تک کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ پوری قوم اب بیدار ہو چکی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار یہ نہیں ہوا، بیداری کی یہ لہر تخلیق پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ ساز قیادت میں بیداری کی یہ لہر بر صغیر کے مسلمانوں میں شدت کے ساتھ اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے آگ اور خون کے سمندر سے گزر کر آپ کا ملک، وطن عزیز پاکستان تخلیق کر دیا۔ ہندوستان تقسیم کرنا، پاکستان کو تخلیق کرنا ایک تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، جس سے بہت سارے ممالک نے تحریک حاصل کی اور اپنی اپنی آزادی کی منزلوں تک پہنچے وہ لوگ۔ اس کے بعد ایک بار پھر قوم بیدار ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں، جسے بیدار ہونے کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے محبوب قائد کا جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ آج پھر یہ قوم بڑی بلندی کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور بڑی حسین سوچوں کے ساتھ، بڑی تعمیری رویوں کے ساتھ یہ قوم مکمل طور پر بیدار ہوئی ہے، اور اس بیداری کا سہرا اسلام کے بطل جلیل قائد اعظم محمد علی جناح کے سچے پیروکار، علامہ اقبال کے شاہین اور مرد کلندر، نظریہ پاکستان کے علمبردار، قوم کی آزادی، غیرت، حمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے پاسبان، بلکہ یوں کہیے گا کہ پاکستان کی سلامتی کا وہ محافظ، قوم کی عزت و غیرت کا وہ محافظ، اور قوم کی آزادی کی سوچ کو پایا تکمیل تک لے جا کر پختہ عزم رکھنے والا وہ لیڈر آج پاکستان کے عوام کا محبوب ترین لیڈر بن چکا ہے۔ اس کا نام عمران خان ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ تاریخ بار بار پلٹ پلٹ کر پاکستان کی قوم کو کسی نہ کسی بڑے لیڈر سے ہمکنار رکھتی ہے، لیکن یہ بات بھی بڑے دانا اور عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو ضائع کر دیا، اگر ہم نے عمران خان کا وہ حشر کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا، بلکہ یہ کہہ لیجئے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کی کچھ وطن کے دشمنوں نے، غیر ملکی ایجنٹوں نے، پاکستان کے دشمنوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بے قدری کی، اس طرح سے اگر ہم نے عمران خان کی بے قدری کی تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وہ ایک صدا دیتا ہے تو قوم اپنے درد کو بھولتی ہے، وہ ایک صدا دیتا ہے تو قوم اپنے بچوں کو لے کر، بزرگوں کو لے کر، جوانوں کو لے کر، بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر اس کے استقبال کے لیے راستے میں آنکھیں بچھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے رات، قوم کہتی ہے رات، وہ کہتا ہے دن، قوم کہتی ہے دن۔ یہ ہوتی ہے قیادت جو نصیبوں سے کسی قوم کو ملتی ہے، اور جو اس قیادت کو ضائع کر رہے ہیں وہ ذرا غور کر لیں کہ وہ پاکستان پر اور اس قوم پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ آج اضطراب کی حالت میں، آج اس بے یقینی کی کیفیت میں قوم اس یقین کے ساتھ اٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دن عمران خان کو پاکستان کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے، عوام کا مقدر روشن کرنے کے لیے، اس قوم کو آزادی کی منزلوں سے ہم کنار کرنے کے لیے، اس ملک کو
कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए हमने इमरान खान को आगे लेके आना है। ये कम से कम 13-14 करोड़ अवाम की यकलफ्त आवाज है कि हमने इमरान खान को दिल के तख्त पर बिठाया हुआ है और पाकिस्तान के तख्त पर बिठाकर हम इस मुल्क की सलामती की हिफाजत करेंगे, हम इस कौम की आजादी की हिफाजत करेंगे और हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी में एक बहुत बड़ा ऐसा मुल्क बनेगा जो कई मुल्कों की क़यादत करेगा। आज कौम का यह अज़्म है, लेकिन साथ ही साथ इस कौम ने कुछ सवाल अपने सामने रखे हुए हैं, कुछ कैफियत अपने सामने रखी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने उनकी वजूद में हलचल मचा रखी है, जो सुबह को चैन नहीं लेने देती, रात को सोने नहीं देती। ये वो बातें हैं और इनमें से पहली बात तो ये है, छुट्टी वाले दिन रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोला गया, अदालत लगी, सुओ मोटो नोटिस हुआ और फिर पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुकम्मल तौर पर मुदाखलत कर दी गई, आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी कर दी गई। इस बात पे कौन बहुत हैरान है। किसी जगह पर इस बात का वजह जवाब नहीं दिया गया कि पार्लियामेंट के इख्तियार को, जबकि वाज़े तौर पर लिखा हुआ है आर्टिकल 69 में कि पार्लियामेंट की तहकीकात में कोई, उसके इख्तियारात में कोई अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। पता नहीं ये बदकिस्मती आनी थी हमारे मुल्क में, पता नहीं ये कौम पर वक्त आना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह से मुदाखलत की कि वो जो मुरासला है अमेरिका का, जो एक साजिश की बुनियाद पर मुदाखलत पर मबनी निकला है, उस मुरासले पर अदालती कार्रवाई नहीं की गई, उस मुरासले को अदालती कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, उस मुरासले पर गौर ही नहीं किया गया, जिस मुरासले की बुनियाद पर कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग देते हुए उस तरीके अदम की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया। फिर जब वजीर आजम के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार आर्टिकल 58 के तहत इस्तेमाल करते हुए कौमी असेंबली को, पार्लियामेंट को तोड़ दिया और आइंदा आने वाले इलेक्शन में कौम जा रही थी, सदर पाकिस्तान ऐलान करने वाले थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, तो आपने फिर अदालत लगाकर आपने 3 अप्रैल वाली सूरत हाल बरकरार करार दे दी और फिर हुकूमत को बहाल करके उससे जिल्लत और रुसवाई के अमल से गुजारा। कौम ये परेशान है इस बात पर कि क्या बात थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब असेंबलियां तोड़ दी गई, जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, जब आने वाला इलेक्शन, जब अपोजिशन का मुतालबा पूरा हो गया कि इमरान खान हुकूमत छोड़ दे, उसने हुकूमत छोड़ दी, इलेक्शन का ऐलान होने वाला था, तो आपने कहा नहीं, इसको जलील किया जाएगा। आपने इमरान खान को नहीं, कौम की पार्लियामेंट की अक्सरियत को जलील किया है। जब आपके सामने खरीदो फरोख्त हो रही थी पार्लियामेंटेरियंस की, बाजार लगा हुआ था, जैसे मवेशियों का, बकरियों का, भेड़ों का बाजार लगता है, खरीदो फरोख्त के लिए बाजार लगा था, तो आपने सो मोटो नोटिस नहीं लिया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मुल्क की सलामती का सवाल है, यहां किसी की इज्जत और ना का सवाल नहीं है। कौम ने, जब आपने अपने हुक्म के शिकंजे में जकड़कर पूरी पार्लियामेंट को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक आपने एक बदनामे जमाना, कौमी दौलत का लुटेरा, अदालतों का मुल्जम, 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस और कई दूसरे केसेस में मुलव्वस, जिसका बड़ा भाई अदालती मफरूर, जिसका बड़ा भाई तहाया सजा याफ्ता, जिसकी भतीजी सजा याफ्ता, जिसका बेटा जमानत पर, जो खुद जमानत पर, आपने उस मुल्जिम को अदालत में पेश होकर फर्द जुर्म का सामना करने की बजाय आपने उसे छोड़ा उस वक्त कार्रवाई को जब आपने उसे वजीर आजम बनवा दिया। अब कौम तो यह भी पूछती है ना, कौम इस बात पे भी परेशान है कि ऐसी कौन सी क़यामत थी, ऐसा कौन सा मामला था, कौन सी नई चीज थी
कौन से सुनहरी कारनामे थे जो इन्होंने अंजाम देने थे, कौन सी वो गालियां थी जो पाक फौज को देने के लिए रह गई थी, कौन सी वो गालियां थी जो अदलिया को देने के लिए रह गई थी, कौन सा वो को लूट मार थी जो इन्होंने नहीं की थी। आपने उनको इस मुल्क की वजारत उस्मा दे दी और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रात में 150 बंदों का नाम ईसीएल से निकलवाया। आपने पूछा तक नहीं। कौम इस बात पे भी बड़ी परेशान है। आपने नहीं पूछा कि भाई क्यों नाम निकलवा लिए गए, क्या वजह है, और जिन पर इल्जाम है, जो आधे से ज्यादा मुल्जम है, जो आधे से कुछ लोग सजा याफ्ता हैं, कुछ लोगों को सजाएं होने वाली हैं, वो वजीर बन गए मरकज के, वो खुदा की पनाह। कभी ऐसा भी इस मुल्क में होना था? इस कौम ने ये दिन भी देखने थे, ये वक्त भी आना था इस बाबा कौम मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान पर, ये वक्त भी आना था उन शहीदों की कुर्बानियों के खून पर, जिन्होंने कुर्बान होकर बहनें बेटियां कुर्बान करके पाकिस्तान बनाया। कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौका बनया। यह मुल्क जो तारीख की बेमिसाल कुर्बानियों के बाद बना, यह मुल्क जिसे 80,000 अफराद ने अपनी कुर्बानियां देकर बचाया है, जिसे हजारों की तादाद में हमारी फौज के जवानों ने, अफसरों ने शहीद होकर बचाया है, जिसे दहशतगर्दी के चुंगल से निकाला गया है, उस पर यह वक्त आना था कि वो लोग जो दहशतगर्दी करवाने वाले थे, वो लोग जो मोदी के यार हैं, वो लोग जो अमेरिका के यार हैं, वो लोग जो गद्दार हैं, आपने उनको ऐवान इक्तदार दे दी, आपने उनको इक्तदार के सिंहासन पे बिठा दिया। कौम परेशान तो है, दुखी तो बहुत है इस मामले पर, और आपसे इस बात की तवक्को कौम को थी ही नहीं। फिर हुआ क्या? उसके बाद आपने देखा, आपने जनाबे वाला मुलाहिजा किया कि मरकजी कबीना में कौन लोग आ गए। मोहसिन दावर जैसे लोग जिन उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया, वो जो रियासत के खिलाफ टकराए हुए थे, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम बॉर्डर पर लगी हुई तारों के साथ जर्नैलों को, फौजी जर्नैलों को बांधेंगे और बांध कर फेंक देंगे। आपने उनको मौका दिया है, उनके नाम ईसीएल से निकले, आपने नोटिस नहीं लिया। उनको मरकजी वजारत मिली, आपने इस बात पे कोई नोटिस नहीं लिया। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस भूल गए उन तमाम गालियों को, उन हमलों को जो सुप्रीम कोर्ट पर किए गए। कौमी सलामती के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ। आपकी अदालतों को रौंद कर वो नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, एक 50 रुपए के स्टाम्प पर चला गया। आपने मंगवाया, भेजा भी अदलिया ने ये कहकर कि अगर मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बाबा, मौत और किसी को नहीं आती, मौत उससे ज्यादा आनी थी। आपने उनको मरकजी वजारतों तक पहुंचाकर कौम के माथे पर कालक लगा दी है, पाकिस्तान को रुसवा कर दिया है, आपने पाकिस्तान को मोहताज कर दिया है। आपने उस बंदे को वजीर आज़म बना दिया है, आपने बनाया है। गलत बात है, कोई नहीं ये मानता कि पार्लियामेंट ने बनाया है, तरीके में एतमाद के नतीजे में बनाया है। आप अगर शिकंजों में ना जकड़ते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अपने हुक्म के शिकंजों में ना जकड़ते, तो फिर कभी मुल्जम वजीर आज़म ना बनता और मुल्जम वजीर आला ना बनता। ये दुनिया में पाकिस्तान ऐसा है जिसे तजर्बागाह बना रखा है हमने, मुख्तलिफ एक लिबर्टी बना रखा है जिसमें मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं। फिर हाई कोर्ट की तरफ आ जाइए। हाई कोर्ट ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर किया है। अवाम इस बात पर भी बहुत बेचैन है। यानी हाई कोर्ट ने इस तरह से मुदाखलत की है, इस तरह से उसने इख्तियारात को सलब किया है। इन्होंने, हुक्मरानों ने, हाई कोर्ट, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर को मुअत्तल किया गया, हाई कोर्ट ने बहाल किया। गवर्नर ने होने वाले जाली इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए
कहा, आपने नहीं माना। गवर्नर ने सदर पाकिस्तान को कहा, आपने पेश नहीं जाने दी। गवर्नर को हुक्म दिया गया, सदर को हुक्म दिया गया कि हमजा शहबाज का हल्फ ले। बाबा क्या मजबूरी, आप देख रहे हैं किस तरह से इंतखाब हुआ है, किस तरह से वहां पे हंगामा हुआ है, कैसे वहां पे आइन को सबोताज किया गया है। 69 और आइन के आर्टिकल 69, 66 में तो पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है कि कैसे मुंतखब होना है, कैसे इंतखाब होना है, कैसे वजीर आला बनना है। लेकिन हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसले देते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो आकर हमजा शहबाज का हल्फ ले। ऐसा भी कभी हुआ है? फिर आप यूं करते ना, कौम तो जगह जगह भी ये कह रही है, जगह जगह पे ये आवाजें आ रही है जनाब। अलग बात है कि आप सुने या ना सुने, जगह जगह पे ये आवाजें आ रही हैं। आपने आइन को पमाल करके, आइन को पसे पुश डालकर, आपने जो वजीर आजम और उसका बेटा वजीर आला बनाया है, कौम के सीनों पर इस बात की आग जल रही है। अलग बात है कि मैं आपको अल्फाज सुना रहा हूं, आप शायद वो ना सुनते हों जो मैं सुनता हूं और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप देखें, आप इमरान खान के साथ लोगों की जज्बाती वाबस्तगी, लोगों की मोहब्बत, लोगों के आंसू, लोगों की आहें, ये सब कुछ देखें। बेटियां क्या कह रही हैं, बेटे क्या कह रहे हैं, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, जवान क्या कह रहे हैं, जरा सुने तो सही वो क्या कहते हैं। यहां तक लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कहे तो मैं अपने बेटे के गले पर खंजर करके उसका गला काट दूं और इमरान खान को बचा लूं। एक बंदे ने आज ये रो रो कर कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता, पहले मुझे मारा जाएगा फिर इमरान खान को मारा जाएगा। एक बेटी रो रही थी साथ साथ आंसुओं के साथ, खाना काबा में उसकी दुआएं, मदीना मुनव्वरा में उसकी दुआएं, पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं, पूरी दुनिया में उसके लिए एहतजाज। ऑनरेबल जज साहबान, आपने किया क्या है? आपने कौन सा सुरखाब का पर लगवा लिया है अदलिया के माथे पर? और जिस मुल्क की अदलिया ही बदनाम हो जाए, जिस मुल्क का अदालती निजाम ही इस तरह का हो जाए कि जहां पर लोग उंगलियां उठाने लगे, उस मुल्क को बचाना आपने कैसे है? लोग तो ये कहते हैं कि बस शरीफी सरमायाकारी को बचाना था, शरीफी खानदान को बचाना था, हिंदुस्तान के यारों को बचाना था, कौम के गद्दारों को बचाना था। आपने बचा लिया। आज जो कुछ कौम की हालत हो रही है, आज जिस तरह से कौम तड़प रही है, आज जिस तरह से माएं बहनें बेटियां कुर्बान होने को तैयार फिरती हैं, आज जिस तरह से लोग अपनी जवान बेटियों को लेकर आए हुए, कोई आता है? लोग अपने बूढ़े मां बाप को लेकर आ रहे हैं, कोई आता है? लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कोई आता है? कोई नहीं आता। और अगर इसके नतीजे में कल को यहां पे लहू बह गया सड़कों पर, उसकी जिम्मेदारी फिर अदलिया पर होगी, सुप्रीम कोर्ट पर होगी, हाई कोर्ट पर होगी और उन तमाम जजेस पर होगी जो इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं, उन तमाम तमाशबीनों पर होगी जो सियासत के नाम पर तालियां बजा रहे हैं, तमाशबीनी कर रहे हैं, तालियां बजाकर उन तमाशबीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन तमाम अदारों पर होगी जो ताकत रखने के बावजूद इस अमल को रोक नहीं रहे। क्यों नहीं बचा रहे कौम को? यार क्यों नहीं जल्दी से इंतखाब की तरफ जाते? क्यों नहीं ऐलान करते? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या अख्तियार है कि आपको कहे कि मैं नवंबर में इंतखाब कराऊंगा? ये सोची समझी साजिश है। चीफ इलेक्शन कमीशन आइन के तहत पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए, हर वक्त तैयार है इस बात पर। उससे पहले क्या कुछ हो जाना है, आपकी जिम्मेदारी होगी। आप दुनिया में भी जवाब देंगे, शहीदों की रूहों को जवाब देंगे, इस पूरी कौम को जवाब देंगे और खुदा को भी जवाब देंगे। इमरान खान ने तो ऐलान कर दिया है, जख्म सहकर ऐलान कर दिया है, अपने सीने पर दर्द उठाकर ऐलान कर दिया है, अपने आप को अपने सीने पर, अपने गले पर जुल्म के, जबर के, नाइंसाफी के खंजर चलते हुए देखकर भी यह ऐलान कर दिया है कि तू जे नहीं तो मैं भी नहीं, पर तू जे है तो मैं भी हां,
اللہ دی سو سونے وطنا تیرے نام نال میرا نام۔ آپ صرف ایک بات کو یاد رکھیں، پوری قوم بھی، پورے ادارے بھی، کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، اور نظریہ پاکستان زندہ باد، عوام کی آواز زندہ باد۔